and seven Indian states. The goal is to add maybe a few states every year, so that over the next 10 years we can get to all states in the country. Our goal, over the next decade is to ensure that at least 100,000 children every year are getting, Ladies and gentlemen, a big round of applause for Akshay Sinha and the team at Avanti Fellows. Congratulations, Akshay and team, for being here this evening. Our final the journey and how you came into and what exactly came into your mind and what are the hurdles you found yourself so that we can set an example to other people. Thank you so much for the question. My name is Madhura Dasgupta Sinha. I'm the founder and CEO of Aspire for Her. I was a banker for 25 years before this, and I was very deeply disappointed to actually see the gender data that I saw emanating from India. In terms of women's economic empowerment, India still lags behind many other countries in the world. And on the other hand, I saw the best and the brightest women around me in India, and I felt that we needed to unleash the economic power of the women of our country, not just through education, but education translating into the economy. And if we are to reach the dream of a $5 trillion economy in India, then we cannot leave the women behind. Absolutely. And that is the reason why we started Aspire for Her. And we are actually very happy to see that we have more than 600,000 members, mentors and supporters today across 23 different communities. And we motivate women to enter and stay in the workforce. So, Ms. Madhur, just tell me one thing. Suppose if we take the sir was talking about the rural India, because potential is there in the rural India, no doubt, absolutely no doubt in that. So, what parameters or what platform have you designed, or it's there in your mind, so that you can tell, we can grab the opportunities, we can make a good platform for the people. They can come and they can join and they can use the opportunities. So what exactly, So how you Aspire can for Her design is a it? platform itself, and we are very inclusive. So we actually love to welcome women from Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5 India as well. We do a lot of skilling programs, especially on the STEM side and the technology side. And after getting skilled, then we support these women to actually get jobs in the industry. And we work with 100 plus partners who are excited about getting more diversity to their workforce. The other thing we do in rural India is to build on women's rural in entrepreneurship. We have a community called Entreprenari, where even for small micro entrepreneurs in rural India, we are working on an accelerator program through aggregators, where we work with artisans and agricultural workers, and we are trying to ensure that their revenues, their customer acquisition, their business metrics actually grows faster, and we are able to create more sustainable business ecosystems for them, giving them market access and giving them helping them get new customers. Wonderful. Thank you very much. Thank वेरी गुड इवनिंग टुडे वी आर एट मॉरिस शेरेटन. हमने देखा कि बहुत ही सुंदर और ज़बरदस्त एक प्रोग्राम जुबलैंड वाले लोगों ने रखा है, और आज हमारे साथ अक्षय जी हैं, अक्षय सक्सेना जी. आइए इनसे पूछते हैं इस प्रोग्राम के लिए इनको दो अवार्ड्स मिले. सबसे पहली बात तो तहे दिल से मुबारक आपके लिए. दूसरी बात अक्षय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस जर्नी के बारे में, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, क्या क्या हर्डल्स आए, कितना आपने बेनिफिट किया सोसाइटी को किया, और आपके क्या ऐसे प्लान्स हैं जो कि और आने वाले टाइम में लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट आप कर सकते. तो हमने काम ये 2010 में शुरू किया था. लेकिन इसकी शुरुआत एक तरह से जब मैं IIT में छात्र था तभी से की. IIT में जब हम पहुँचे तो सबने हमसे कहा कि देखिए ये देश निर्माण का इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो आगे जाके इंडिया के लीडर बनते हैं. और उसमें हमेशा एक बात खटकती रही कि वहाँ पे जो अधिकतर बच्चे एकदम एक जैसे थे, ज़्यादातर लड़के, ज़्यादातर उच्च वर्ग के बच्चे. और एक तरह से जो IIT का गोल था मुझे लग नहीं रहा था कि अचीव हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो इंडिया की अधिकतर पॉपुलेशन है वो रिप्रेजेंटेड ही नहीं थी. तो 2010 में हमने स्टार्ट किया तो गोल यही था कि हम गाँवों से जो आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं उनको सिलेक्ट करें और उनको हम IIT जैसे इंस्टीट्यूट में पहुँचाएँ, क्योंकि उसका प्रभाव दो तरफा है. एक दो तरह का है. एक है सिर्फ कि आर्थिक रूप से ऑब्वियसली बच्चे सक्षम हो जाते हैं, लेकिन उनका जो उनके समुदाय पे, उनके समाज पे प्रभाव पड़ता है वो बहुत उससे बड़ा है. तो शुरू तो बहुत छोटी सी थी. हमारे पहले बैच में 13 बच्चे थे, और धीरे धीरे CSR के समर्थन से, सरकार के समर्थन से
हमने प्रोग्राम एक्सपैंड किया। अब हम 8 स्टेट्स में सरकार के साथ डायरेक्टली काम करते हैं और सरकारी स्कीमों के पार्ट हैं कि सरकार की सहायता करते हैं ताकि वो ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम चलाएं, उसमें बच्चे सेलेक्ट हो, उन बच्चों को फ्री जेई नीट इत्यादि की कोचिंग मिले। इस साल करीब 30,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे प्रोग्राम में होंगे। 7-8 हज़ार बच्चे ग्रेजुएट करेंगे हर साल, करते हैं हर साल। उसमें करीब 2,500 बच्चे IIT, NIT, टॉप स्टेट कॉलेजेस इन सब में जाके पढ़ते हैं। जो बच्चे अब 5-6 साल जिनको हो चुके हैं ग्रेजुएट हुए, अधिकतर बच्चे साल के 15-20 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो उनकी फैमिली पॉवर्टी से तो छोड़िए, आप अब आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो गई हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ बच्चे अब IFS ज्वाइन कर रहे हैं, IAS ज्वाइन कर रहे हैं, कंपनीज़ में सीनियर लीडरशिप में पहुंच रहे हैं, अपनी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। तो एक तरह से ऐसे फोरम्स में हम होते हैं, कोशिश यही होगी कि मैंने आज स्पीच में यही कहा कि शायद 5-6-10 सालों में ऐसा हो कि जो इंसान ये अवार्ड ले रहा हो मेरे जैसा ना दिखे, वो गांव से हो, वो सरकारी स्कूल से हो। तो वही हमारी कोशिश है। और ऐसे अवार्ड से और जुबलेंट भारती इत्यादि के समर्थन से हमारी जर्नी आगे बढ़ती है, हमें समर्थन मिलता है और हम और काम करते हैं। अक्षय जी, बिल्कुल आपको इस बात के लिए मैं समर्थन वो करता हूँ। और जैसे कि हमने देखा, कि मिनिस्टर साहब ने भी कहा, हरदीप जी ने कहा कि जो हिंदुस्तान का बेसिक टैलेंट है वो गांव में बसता है। क्योंकि शहर के बच्चों को तो चल उनको फैसिलिटीज़, मतलब जब से वो जन्म लेते हैं उनको फैसिलिटीज़ मिलती है, लेकिन गाँव के बच्चों को नहीं मिल पाती है, उनको अवेयरनेस नहीं आ पाती। तो ये तो बहुत ही नोबल कॉज है, जिससे कि हम अपने गांव के पोटेंशियल को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे आजकल स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो। लेकिन अक्षय जी, आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि बच्चों ने बहुत IFS और अच्छे इंस्टीट्यूट्स में अच्छे टॉप लेवल पर पहुँच गए हैं, आपने पूरी फैमिली को एक पॉवर्टी लाइन से ऊपर ले आए। क्या कुछ ऐसा आपने कार्यक्रम रखा है कि वो बच्चे अपने और दूसरे गाँव के लोगों को अट्रैक्ट कर पाए, ताकि उनका भी जीवन शैली अच्छे, उनकी भी जो लाइफ वैल्यू, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो वो इम्प्रूव हो और वो भी एक अच्छे लेवल पे आ पाएँ? कुछ ऐसा आपने प्रोग्राम रखा है क्या? हाँ, वो हमारे प्रोग्राम का बहुत बड़ा पार्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ, गांव में सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे सोसाइटल थिंकिंग और सामुदायिक थिंकिंग अभी भी बरकरार है। तो जैसे किसी बच्चे या बच्ची का होता है, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि उसके जो समाज में जितने बच्चे हैं उनसे वो मिलता है या मिलती है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। हमने देखा है कुछ स्कूलों में जब हमने काम शुरू किया था, 1 बच्चे का 2 बच्चियों का हो रहा था। अब उन्हीं स्कूलों से 15-15, 20-20 बच्चे सिलेक्ट होकर कॉलेज जा रहे हैं। दूसरा है कि सारे बच्चे हमसे जुड़े रहते हैं, ये बार-बार स्कूलों में आते हैं, दूसरे बच्चों की मेंटरशिप करते हैं। जब ये हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में जो सीनियर होते हैं उनको गाइड करते हैं कि आप जॉब्स की तैयारी कैसे करो, आप फाइनेंशियल एड कैसे लो। तो ये एक तरह से एक मूवमेंट है कि ये जो बच्चे हैं ये जीवन भर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, बिकॉज उनकी जर्नी बहुत सिमिलर रही है। वो एक पूरी फैमिली की तरह हो जाएगी। आखिर में एक सवाल अक्षय जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आप ऑलरेडी अपना प्रेजेंस और 8 स्टेट्स में बता रहे हैं, तो ऐसा क्या मतलब प्लेटफॉर्म डेवलप होना चाहिए या आपने किया है, जिससे कि बाकी स्टेट्स के लोग भी जुड़ पाएँ, वो बच्चे भी जुड़ पाएँ, उनको भी बेनिफिट हो और उनको जुड़ना थोड़ा सा आसान हो जाए, ताकि उनको थोड़ा अवेयरनेस अगर नहीं भी है तो उनको पता लगे? कुछ ऐसा प्रोग्राम आपने डेवलप किया है या स्टेज में है? हाँ, तो आई थिंक पिछले 3 से 4 सालों में ऑनलाइन के मेथड्स के थ्रू हम बच्चों तक पहुँच ज़रूर पा रहे हैं। तो जितने भी हम स्टेट्स हैं में स्टेट वाइड प्रोग्राम चलता है, तो मतलब हर स्कूल में खबर जाती है कि आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हम काफ़ी तेज़ी से स्टेट्स ऐड कर रहे हैं। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने गुजरात में काम शुरू किया, तो कोशिश ये होगी हर साल 3 से 4 स्टेट हम ऐड करें, तो 2-3 सालों में हम हर स्टेट में पहुंच जाएं। अब उसके बाद आई थिंक स्टेट के साथ काम करना ज़रूरी है कि हम उनको डेटा दें कि चलिए आप यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल खोलिए, आप इन बच्चों को वाउचर दीजिए, आप टेंडरिंग करके प्राइवेट कोचिंग लाइए। तो ये जो पॉलिसी वाला काम है ये अभी जोर पकड़ रहा है धीरे धीरे, और उस तरह से ही हम सब तक पहुँच पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।